Welcome back, children, to your English class. This is the fourth part of the chapter. Chuskit goes to school. This is the 10th chapter from your book, My English Garden. Yes, in the last video, in the third video, we saw a very pathetic condition of चुस्किट. हमने देखा कि कैसे चुस्किट बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति में है एंड विलिंगली शी इज़ नॉट एबल टू गो टू स्कूल. वो चाह करके भी स्कूल नहीं जा पा रही है. एंड हियर an angel comes in her life as Abdul उसकी लाइफ में एक फरिश्ता बन के आता है एंड somewhere he makes her realize that the things can be possible. उसको realize कराता है कि चीज़ें possible हो सकती हैं. So let's see what happens. Will she be able to go to school or not? So here we were talking about that when she says to Abdul that yes, I also want to go to school. यहाँ पर the last line we were talking about. वो कहती है yes, I want to study like all of you, make friends, play games. Where now this is the scene where this Abdul is standing folding with hands and talking to Chuskit, who is sitting on the wheelchair, and her grandfather is reading the letter. So meanwhile, when his grandfather is reading the letter, both of them are talking and sharing their problems and views. Now what happens? Yes, so we'll continue from the first line as Chuskit was talking about school, that what all she likes in school. So she was telling that I want to study like all of you, make friends, play games, wear uniform and even write exams. वो कहती है कि मुझे सब कुछ करना पसंद है, ड्रेस पहनना पसंद है, मुझे गेम्स खेलना पसंद है और मुझे दोस्त बनाना भी पसंद है और बल्कि मैं एग्ज़ाम भी देना चाहती हूँ. Sometimes my brother teaches me songs that he has learned at school. वो कहती है कि even I learned something from my brother, younger brother, who goes to school every day, and whatever he learns, he teaches me too. And some songs he has learned and he has taught me also. जो उसने सॉन्ग सीखे हैं स्कूल में, उसने मुझे भी सिखाया है. And I love it. वो कहते हो मुझे बहुत पसंद है. I like listening to the songs of a school. I sometimes dream of carrying a school bag, even eating packed lunch. Now again, being a child, you all can understand the condition of this girl. Suppose in this duration in coronavirus epidemic हमें पता चला कि घर में रुक कर के पढ़ाई करना इज़ नॉट वेरी ईजी एंड इट इज़ रियली वेरी बोरिंग बहुत ही बोरिंग लगता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है. एंड हम जानते हैं कि पढ़ाई बहुत इम्पॉर्टेंट है और हम चाह कर के भी स्कूल नहीं जा पा रहे. तो समवेयर और दी अदर कुछ इस सिचुएशन का जो पार्ट है इस चुस्किट की लाइफ से मिल रहा है. बस ये है कि चुस्किट की लाइफ बहुत ज़्यादा टफ है एज़ कम्पेयर टू आवर लाइफ्स. अब चुस्किट कहती है कि मेरा तो इट्स माई ड्रीम टू कैरी द बैग टू स्कूल एंड इवन हैविंग पैक्ड लंच. वो कहती है कि मुझे स्कूल के बैग में तो सपने आते हैं कि मैं कभी कभी स्कूल का बैग लेके जा रही हूँ और मेरे हाथ में मेरी मदर ने एक लंच पैक करके दिया हुआ है. अब नाउ हर ग्रैंडफादर he is reading the letter, but side by side he is listening to their conversations. वो उनकी बातें भी सुन रहा है. And before Chuskit gets emotional or gets too much involved in the conversation, उसके जो grandfather हैं उसको मना करते हैं. वो नहीं चाहते हैं कि चुस्किट इन सब बातों को बार बार बोल करके उसको तकलीफ़ होगी, क्योंकि जो चीज़ें उसे मिल नहीं पा रही हैं उसके बारे में बात करने से और ज़्यादा तकलीफ़ होती है. तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं एनफ. इंटरप्टेड हर ग्रैंडफादर. एनफ का मतलब बस करो. इंटरप्टेड मीन्स टू इंटरफेयर, किसी को रोकना, टोकना बीच में. तो उसको रोकते हुए कहते हैं बस करो भाई, अब स्टॉप ड्रीमिंग. चुस्किट से कहते हैं अपने सपने देखना बंद करो. यू कैन नॉट गो टू स्कूल. वो कहते हैं कि यू नॉट able to go to school. How will you go to school? Why are you dreaming when you're not able to go to school? वो कहते हैं कि जब तुम जानती हो कि तुम स्कूल नहीं जा सकती हो तो तुम ये बातें क्यों करती हो, इससे तुम्हें तकलीफ़ होगी. लर्न एज मच एज यू कैन एट होम. वो कहते हैं कि तुम सीख सकती हो. यू आर एबल टू लर्न द थिंग्स एट होम. वो कहते हैं तुम घर में भी रह के सीख सकती हो.
It is not necessary to go to school like others, as you're not in the condition of going to school, you are not capable of going to school. उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम चीज़ें घर पे सीख सकती हो, स्कूल जाकर सीखना ही कोई सीखना नहीं होता है, और तुम्हें पता है कि तुम नहीं जा सकती हो स्कूल. Memele does not understand how I feel, said Chuskit. Now the meaning of Memele is grandfather. So again Chuskit says to Abdullah that he doesn't understand what I feel, how I feel. वो कहते हैं इनको नहीं समझ में आता है कि मैं कैसा फील करती हूँ. I remember the day my brother recited the tables with such pride, even the time he learned to read. My parents were very happy as they have never been to school. I too want to learn to read and do math. Do you understand? Abdullah said, yes, I do. Now what happens? जैसे उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि stop talking about all these things when you're not able to go to school. Chuskit becomes very sad and he says to Abdullah that he won't be able to understand my problem. I remember वो कहती है I know what pride, what grace comes when you study. वो कहती है कि मुझे पता है कि कितना अच्छा लगता है, कितना रिस्पेक्ट लोगों को मिलती है अगर आप स्टडी करते हो. मैंने अपने भाई को देखा. वो कहती आई रिमेंबर द डे व्हेन माय ब्रदर, यंगर ब्रदर, वाज टेलिंग देम द टेबल्स एंड रीडिंग द थिंग्स. माय पेरेंट्स वर सो हैप्पी टू सी हिम परफॉर्मिंग ऑल दीज थिंग्स. वो बहुत खुश थे उस मेरे भाई को देख करके, बिकॉज दे themselves हैव नॉट बीन इन एनी स्कूल. वो कहते हैं बिकॉज वो भी किसी स्कूल में उन्होंने पढ़ाई नहीं करी है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे बच्चे अपने मेरे भाई और अपने लड़के को देख करके कि वो इतना अच्छे से टेबल्स सुना रहा है और रीड कर पा रहा है. एंड मैं भी चाहती हूँ, मैं भी यही सब चाहती हूँ. आई ऑल्सो वॉन्ट टू लर्न एंड रीड, आई वॉन्ट टू डू मैथ्स. वो कहते मुझे मैथ्स लगाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, बट मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं. तो वो अब्दुल्ला से कहती है माई ग्रैंडफादर डजंट अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड. वो कहती है कि क्या तुम्हें समझ में आता है जो मैं इतना बोल गई हूँ, मेरी प्रॉब्लम क्या तुम समझते हो. अब्दुल्ला सेड यस आई डू, मुझे समझ में आया, मैं समझता हूँ. अब बिकॉज अब्दुल्ला इज़ वेरी सिंसियर बॉय, ही गोज़ टू हिज स्कूल एंड सेज एवरीथिंग टू हिज हेडमास्टर. वो उससे बातें करता है, उनसे सारी बातें बताता है. द नेक्स्ट डे अब्दुल वेंट स्ट्रेट टू द हेडमास्टर्स रूम आफ्टर असेंबली. जुले अजहंगले, ही सेड. अजहंगले इज़ द वर्ड विच इज़ यूज फॉर एल्डर पीपल. जो बड़े लोगों के लिए यूज़ होता है, जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए यूज़ होता है. तो वो जब नेक्स्ट डे होता है वो सीधे अपने हेड मास्टर के रूम में चला जाता है, स्ट्रेट चला आता है और उनको ग्रीट करता है. वो कहता है आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट अ गर्ल रूम फ्रॉम आवर विलेज हु डजंट गो टू स्कूल. हर नेम इज़ चुस्किट. शी इज़ स्टॉपडन्स सिस्टर. अब वो बताता है स्टॉपडन्स के बारे में, दैट शी चुस्किट के बारे में कि दैट देयर इज़ अ गर्ल हु वांट्स टू कम टू स्कूल बट शी इज़ इन सम प्रॉब्लम. वो थोड़ा प्रॉब्लम में है. एंड हर नेम इज़ चुस्किट एंड शी इज़ स्टॉपडन्स सिस्टर. वो स्टॉपडन्स की सिस्टर है. तो वो हेड मास्टर कहते हैं ओ येस आई नो हर. वो कहते हैं मुझे पता है. शी यूजेज़ अ व्हील चेयर टू मूव अराउंड बट कैन नॉट रीच स्कूल एज द पाथ फ्रॉम हर होम इज़ टू रफ एंड अनइवन. वो कहते हैं आई नो द रीज़न ऑल्सो. वो कहते हैं मुझे रीज़न भी पता है दैट वाई शी नॉट एबल टू कम टू स्कूल, बिकॉज दिस अनइवन पाथ, दिस पेबली पाथ, इन पत्थरों से भरा हुआ रास्ता की वजह से वो नहीं आ पाती है. आई वॉज वंडरिंग इफ वी कुड डू एनीथिंग टू हेल्प हर. अजहंगले वो कहता है इवन जो उसके हेड मास्टर वो भी कहते हैं मैं भी सोच रहा था कि काश मैं उसके लिए कुछ कर पाता. वी कुड ऑल गेट टुगेदर एंड लेवल द पाथ एंड ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल ब्रिज अक्रॉस द स्ट्रीम. वो कहता है कि कैन वी गो टुगेदर एंड क्रिएट अ ब्रिज. क्या हम एक साथ मिल करके ब्रिज को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, हम ब्रिज को नहीं बना सकते अक्रॉस दिस स्ट्रीम, उस स्ट्रीम को पार करता हुआ, उस स्ट्रीम के ऊपर से होता हुआ.
तो उसके हेड मास्टर बोलते हैं, दैट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू अब्दुल, said the headmaster as he patted him on the back. अब उसके जो हेड मास्टर हैं बिकम सो हैप्पी एंड सीइंग हिज enthusiasm towards Chuskit's problem. He becomes he himself gets motivated and he says to him कि तुम्हारा जो you have really great idea. एंड ही पैस ऑन हिज बैग, उसकी पीठ पे थपथपाते हुए उसको शाबाशी देते हैं और कहते हैं, व्हाट मेड यू थिंक ऑफ चुस्किट एंड हर प्रॉब्लम्स अजंगले। आज उसके जो हेड मास्टर उससे कहते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लगा, तुम्हें किस चीज़ ने चुस्किट के प्रॉब्लम में इतना इन्वॉल्व होने के लिए बोला, या फिर क्या रीज़न था कि तुम इतना ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व हो गया। अजंगले लास्ट वीक, अब वो कहता है अब्दुल्ला कहता है, लास्ट वीक वी रेड अबाउट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स इन आवर सिविक्स क्लास. All children have right to education and that is includes Chutkis as well, does it now? Abdullah, now here you all can see the importance of EVS, the importance of SST, civics. Even all the subjects are important. The information which are provided in the books really valuable. तो अब अब्दुल्ला को कैसे ये पता चला कि ये चुस्किट का राइट है, चुस्किट का अधिकार है कि वो भी जाके स्कूल में पढ़ाई करे। अब अजंगले उससे पूछते हैं, उसके जो हेड मास्टर से कहते हैं कि वाई डिड यू हाउ कम यू थॉट ऑफ दिस। वो कहते हैं कि कैसा तुम्हारे दिमाग में विचार आया कि चुस्किट के लिए हम ये सब कर सकते हैं या हमें करना चाहिए या लोग हमारी मदद करेंगे। तो वो कहता है कि बिकॉज लास्ट वीक मैंने सिविक्स में एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने राइट्स के बारे में, अपने अधिकार के बारे में पढ़ा था, राइट टू एजुकेशन के बारे में पढ़ा था, दैट एजुकेशन इज़ फॉर एवरी वन. It is very necessary to all the children, no matter how are they and where do they live, right? So वो बताता है कि जो चुस्किट है, she being a girl, being a child, she has a right to education. उसके पास भी एजुकेशन प्राप्त करने का राइट है. तो now see that he is implementing his एजुकेशन. वो अपने जो एजुकेशन में उसने पढ़ा, जो अपने उसने पढ़ाई करी है उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है. दिस इज़ व्हाट कॉल्ड एजुकेशन. इसी को ही एजुकेशन कहते हैं बच्चों. तो यहाँ पर बहुत आसानी से एक चीज़ हम समझ सकते हैं दैट स्टडीज़ नेवर गो इन वेन. जो हमारी पढ़ाई कभी ज़ाया नहीं जाती है. समथिंग और दी अदर वी कीप ऑन लर्निंग. हम हर चीज़ पढ़ाई से सीखते रहते हैं. एजुकेशन में बहुत कुछ सिखाती, कुछ नहीं बहुत कुछ सिखाती हमें. सो respect your parents, respect the education and do study wholeheartedly, right? पूरे दिल से पढ़ाई किया करिए, half heartedly नहीं, under compulsion नहीं. So whenever you study for your parents, study for your nation, right? So children, saying all these motivational words, I would close this video. Thank you children, take care.